हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन इज ड्राई। नाउ वी विल सी at the end of the compression is wet, right? So now I will read the numerical and then we solve this numerical. How we can solve this numerical? So find the theoretical COP for a COT mission working between the temperature range of 25 degrees and minus 5 degrees. The drainage fraction of COT gas during the suction stroke is 0.6. Following properties of COT are given. So the temperature is 25 minus 20. So regarding that enthalpy, entropy दिया है, vapor दिया है, latent heat दिया है. So find out these things before by using of COP. So here you can observe it. The dryness fraction of CO2 gas during suction stroke करके दिया हुआ है. सो इसका मीनिंग ये है हमारा ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक माने हमारा ये रहता है पॉइंट नंबर 1 का पास में हमारा कितना है. सो यहाँ पे पॉइंट आउट x2 का पास में कितना है, मे बी दैट इज ड्राई सैचुरेटेड और वेट कंडीशन, वी डोंट नो. But one condition we know that is S1 is equal to S2, right? From that equation we find out the x2 value. So now I didn't draw don't draw any diagram because of we don't know the x2 condition, point 2 condition. Maybe it's dry saturated, maybe it's in a wet condition, maybe it's in a अदर कंडीशन भी हो सकते हैं. सो नाउ वी विल फाइंड आउट द x2 वैल्यू, देन वी गो फॉर द डायग्राम. सो आई विल राइट हियर द गिवन डेटा दैट इज हमारा कितना है. सो T1 इज इक्वल टू माइनस 5 डिग्रीज प्लस 273, राइट. इट इज हमारा 268 केल्विन, राइट. नेक्स्ट हमारा कितना था T3, दैट इज 25 डिग्रीज प्लस 273, राइट. दैट इज हमारा 298 केल्विन. But we don't, I don't draw any figures, but now I find out the x2 value, then based on that I will draw the diagrams. So we know that क्या है, हमको क्या मालूम था. we know that S1 is equal to, we know that entropy at point 1, so entropy at point 1 कितना है, that is 0.6. so x1 is equal to 0.6. COP is equal to कितना फाइंड आउट करना है, right. So let we saw that S1 is equal to SF1 plus हमारा x1 into HFG1 by T1. This is the formula for that one. So here enthalpy और entropy दिया हुआ, liquid means it is in a HF, it is in a SF. vapor यहाँ पे दिया है आपका enthalpy को Hg और SC. यहाँ पे लेटेंट हीट ओनली होते हैं एंथैल्पी में HFG, राइट. सो पुट द वैल्यूज इनटू द इक्वेशन. SF1 कितना है, SF1 0.2862 प्लस x1 कितना है 0.6. HF1 करना 248.76 डिवाइडेड बाय हमारा T1 कितना दिया है, दैट इज 268. सो नाउ आई विल कैलकुलेट दिस वन, हाउ मच वैल्यू वी विल गेट. सो नाउ आई विल कैलकुलेट दिस वन 0.2862 प्लस 0.6 into 248.76 divided by 268. So the value comes nearly 0.8431.
0.8431. It is an equation number 1. So same हमने S2 फाइंड आउट करते. We know that entropy, we know that entropy at point 2 का पास में S2 is equal to SF2 plus X2 into HFG2 by T2. So SF2 वैल्यू, SF2 कितना है हमारा 0.5978 plus X2 is unknown value. Then HFG2 कितना है, HFG2 11.746 by हमारा T2 वैल्यू कितना था 298. right? Suppose we will solve this 298. Suppose we will solve this equation. So how it will comes 117.11 हमारा 117.46 divided by 298. So 0.3941. Right, 0.3941. So I will write this equation like this: 0.5978 plus 0.3941 x1 करके हमने लिख सकते, right? See, so now equating the equation, this is equation number 2. Equating the equation 1 and 2. 1 and 2 को इक्वेशन को इक्वेटिंग करते हैं हमने. यहाँ पे इक्वेटिंग करने से क्या होगा हमारा S1 is equal to S2. There is how much the value of S1? 0.8431. So 0.8431 is equal to हमारा इक्वेशन क्या था 0.5978 plus 0.3941 x1. right? Suppose if x1 फाइंड आउट करना है 0.8431 ये इधर आ जाएगा तो 0.5978 होगा डिवाइडेड बाय 0.3941. right? So now we will 0.8431 minus 0.5978 divided by 0.3941. So it will comes 0.662. So the value comes x2 value. Sorry, this is an x2 value. The x2 value, how much it is? 0.662. So the value comes 0.662. So x1 is हमारा 0.6, x2 is हमारा 0.662. So the end of the compression is wet, it is not dry. So now I will draw the diagram. TS diagram, TH diagram, right? TS diagram में हमारा कैसे ड्रा कर सकते हैं? तो एंड ऑफ द कंप्रेशन इज हमारा क्या है वेट कंडीशन है. सो अंदर में रहेगा. ये लिक्विड एंट्रोपी है, ये ऐसे ही हमारा टच रहेगा. राइट, ये लिक्विड एंट्रोपी है, ये हमारा ऐसे ही टच रहेगा. सो नेक्स्ट वाला हमारा राइट 1 2 3 4 कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, एवापोरेशन. पीएच डायग्राम दिखा जाए हमने, सेम हमारा टच नहीं होगा वेपर लाइन को, अंदर पे ही रहेगा. एंथैल्पी इज कांस्टेंट हियर क्या होगा हमारा HF3 इज इक्वल टू H4, ये H1 होगा, ये H2 होगा, ये P1 इज इक्वल टू 1 2 3 4. राइट, P1 इज इक्वल टू P4, P2 इज इक्वल टू P3. यहाँ
पे भी हमारा T1 इज इक्वल टू T4, T2 इज इक्वल टू T3, राइट. So now we will find out the H1, H2 values. H1 is equal to HF1 plus X1 is equal to HFG1, HF2 plus X2 into HFG2, right. So put the values. HF1 वैल्यू कितना है? HF1 वैल्यू हमारा 72.57 प्लस 0.6 इंटू HFG1 कितना है? 248.76. नेक्स्ट हमने HF2 वैल्यू फाइंड आउट करते. HF2 वैल्यू कितना है हमारा? HF2 इज हमारा 164.77, 1177.46. So that is how much? 164.77 plus हमारा 0.662 इंटू हमारा 117.46. So HF3 is equal to H4. HF3 is equal to H4. So now I will find out the HF3 is equal to H4. HF3 is equal to कितना है हमारा? 25 का पास में हमारा HF कितना होगा? वो है हमारा HF3. That is 164.77. 164.77. So now I will calculate the H1 and H2 values. H1 values calculate करेंगे हमने. यहाँ पे देखिएगा तो 72.57 प्लस 0.6 इंटू 248, ये 48 है, 248.766. The value comes 221.826. 221.826. Next, the value comes here 164.77 plus 0.662 into 117.46. 237.830. So here kilojoules per kg, here also kilojoules per kg. So we all know the values to find out the COP. COP फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सारा कुछ हमको मालूम है. देन वी विल फाइंड आउट द COP. COP इज इक्वल टू H1 minus HF3 by H2 minus H1. Put the values 221.826 minus 164.77 by 237.830 minus 237.830 minus H1 वैल्यू कितना था? 221.826. Now we will calculate all these things. 221.826 minus 164.77, 237.830 minus 221.826 bracket close. So 3.56. The value comes 3.56. तो स्टूडेंट्स इस तरीका से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमने क्या देखे हैं? सो गिवन डेटा हमने लेके S1 को फाइंड आउट किए बिकॉज ऑफ X1 हमको दे दिए. यहाँ पर X2 वैल्यू हमने फाइंड आउट, X2 वैल्यू को भी हमने फाइंड आउट किए, X2 वैल्यू को भी हमने लेके तो दोनों इक्वेटिंग किया इक्वेशन 1 और 2 को. So X2 value find out किया and then we draw the TH and pH diagram based on the condition
इट इज इन ए वेट कंडीशन. सो H1 फाइंड आउट किया, H2 HF3 फाइंड आउट किया, COP H1 का ये सारा का हमने फाइंड आउट किया. तो इस तरीका से हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है वेट कंडीशन पे. अगर हमने जाते हैं सेम न्यूमेरिकल, हम लोग ने जो है सेम न्यूमेरिकल को हम लोग कर सकते हैं. तो हमने इस पे भी हमने सेम न्यूमेरिकल को हम लोग डील करेंगे. उसमें हमारा क्या होगा, तो हमने इस न्यूमेरिकल को फिर के पास में जाएंगे. सेम उस तरीका से वेट कंडीशन का जो कंडीशन है वो कंडीशन का पास में हमने COP फाइंड आउट करेंगे. तो उस न्यूमेरिकल में हमारा क्या होगा. तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, राइट. एन अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग मशीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. An ammonia refrigerating machine fitted with an expansion valve works between the temperature limits of -10 degrees and 30 degrees. The vapor is 95% dry at the end of the compression and the fluid leaving the condenser is at 30 degrees. Find the COP of the refrigerating machine. ये इस तरीका से हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है. Now I will solve this numerical. So right. So here the data is given, temperature is given, liquid heat दिया, latent heat दिया है. इट्स मीन्स हमारा इधर एंथैल्पी है लिक्विड कंडीशन पे, लेटेंट हीट माने हमारा HFG है, लिक्विड एंट्रोपी माने SF है, टोटल एंट्रोपी ऑफ ड्राई वाटर वेपर ये यहाँ पे दिया हुआ है. ये हमारा SG का वैल्यूज है, राइट. ये हमारा SG का वैल्यूज सामने दिया गया है, राइट. इस पे हम लोग ने सुपर हीटेड कंडीशन का पास में हमारा दिया गया है ये सारा कुछ. ये हमने ये नेसेसिटी हम लोग को जरूरत नहीं होगा, ये हमने इससे हमने जरूरत हमारा हो सकता है, राइट. नाउ वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. सो द कंडीशन इज द वेपर इज 95% ऑफ ड्राई एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन. मीन्स 95% ऑफ द ड्राई एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन मीन्स क्या है, x2 इज 0.95, x2 इज 0.95. Now I will given data लिखते. So T1 is -10 degrees plus 273, that is 263 Kelvin, right. Next हमारा कितना दिया है, T3 दिया है, that is कितना है हमारा, T3 is हमारा 30 plus 273, that is 303 Kelvin, right. X2 value given, that is 0.95%, right, 0.95, right. So find out the COP हम find out करना है. So let us draw the diagram of this condition. So पिछले न्यूमेरिकल में हमने जो किया सेम हमने इस पे भी करेंगे. So हमने ड्रा करते TS डायग्राम, PV डायग्राम, PH डायग्राम ड्रा करते. PH डायग्राम ड्रा करते हमने. यहाँ TS डायग्राम में क्या है हमारा, TS डायग्राम में हमने फर्स्ट ड्रा करना क्या है, पहले वेट कंडीशन है S1 इज इक्वल टू S2, राइट. नेक्स्ट ये लिक्विड में पास में जा रहा है, नेक्स्ट हमारा एंट्रोपी, ये 1 2 3 4 प्रोसेसेस लाइक दिस. अगर pH डायग्राम हमने देखते, ये हमारा वेट कंडीशन है, ये कंडीशन है, एंथैल्पी इज कांस्टेंट. यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P4, यहाँ पे P2 इज इक्वल टू P3, यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T4, यहाँ पे T2 इज इक्वल टू T3. So now according to this one we will find out the things. So what happened? Now we will find out we know that entropy at point 1. We know that entropy at point 1. At point 1 के पास में हमने find out करा. So S1 is equal to SF1 plus X1 HFG1 by T1. So SF1 कितना है, SF1 0.543, HFG कितना है 12.968, राइट. 1297.68.
सो T1 इज 263. सो यहाँ पे हमने पुट करते हैं वैल्यू को. वैल्यू इज SF1 इज 0.443 प्लस X1 इज अननोन वैल्यू. HFG1 कितना है हमारा? HFG1 इज 1297.68 बाई 263. तो यहाँ पे हमारे कैलकुलेटर में देखिएगा, हम कैलकुलेटर में कितना है 1297.68 बाई 263 4.934 वेट 0.5443 प्लस हमारा 4.934 x1. राइट. Similarly we know that entropy at a point 2. So S2 is equal to SF2 plus X2 into HFG2 divided by T2. SF2 वैल्यूज कितना है देखिए तो हमारा 1.2307. HFG वैल्यू कितना 1145.80. बट X2 वैल्यू इज गिवन दैट इज 0.95. राइट. सो SF2 हम फाइंड आउट करते. SF2 इज हमारा कितना है? SF2 इज हमारा 1.2307 प्लस 0.95 इंटू HFG2 हमारा 114.8 divided by 303. So now we will find out these things. So 1.2337 plus 0.95 into 1145.8 divided by 303. right? 4.796. यहाँ पे देखिएगा 4.796 किलो जॉल पर केजी केल्विन. So now equating the 1 and 2. So what was the value? 0.5433 plus 4.934 x1 is equal to 4.796. इसको ऐसा करते हैं हमने x1 is equal to 4.796 minus 0.443 divided by 4.93. So x1 हम फाइंड आउट करते 4.796 minus 0.5443 divided by 4934. राइट. द आंसर केम 0.86. द आंसर आया है हमारा 0.86. x1 वैल्यू इज हमारा 0.86. So now we will find out the h1 value, h1 h2 value and hf value because of COP is equal to हम लोग को पता है h1 value hf1 plus x1 into hfg1. राइट. h2 वैल्यू हमारा hft2 हमारा hf2 प्लस x2 इज इक्वल टू hfg2. राइट. hf1 हमारा कितना है? hf1 इज हमारा कितना है? hf1 इज हमारा देखेंगे hf1 इज इक्वल टू हमारा कितना है? तो hf1 इज इक्वल टू हमारा कितना है? सो hf1 इज इक्वल टू हमारा 135.37 19.46 323.08 1141 h2 का वैल्यूज. सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं हमने 135.37 प्लस x1 इज 0.86 इंटू hfg1 वैल्यू 12.968 इसका वैल्यूज 323.08 प्लस x2 इज 0.95 इंटू हमारा इसका वैल्यू कितना था 114.68.
तो नाउ आई विल कैलकुलेट HF3 माने हमारा H2 के पास में HF वैल्यू जो रहेगा हमारा वही रहेगा, दैट इज 323.08 किलो जूल पर kg. So now I will find out these things. Now I will find out 135.37 plus 0.86 into 1297.68. That is 1251.37. 1251.37 किलो जूल पर kg. नेक्स्ट देखेंगे 323.08 प्लस 0.95 इंटू 1145.8, ये है हमारा, कैलकुलेट करेगा तो 1411.59 किलो जूल पर kg. Right. So now I will put the values into the equation. COP is equal to H1 minus HF3 by H2 minus H1. Right. तो H1 value is हमारा 1251 हमारा 37 minus HF3 value 323.08 divided by 1411.59 minus H1 value is हमारा 1251.37. So now I will calculate this thing. Then we know that how much COP came. 1251.37 minus 323.08 divided by 1411.59 minus 1251.37. Right. So if you calculate, the value comes 5.79. Right. Value came 5.79. Right. 5.79. 5.79. 5.79. 5.79. तो स्टूडेंट्स ये हमने ये न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए. तो इसमें से हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमने कैलकुलेशंस अच्छा तरीका से करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को करना है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें हमने क्या क्या किया है, उसमें से आप लोग को पता चलेगा. सो यहाँ पे पहले दिया है गिवन डेटा, दैट इज T1 इज इक्वल टू -10 प्लस 273 इज इक्वल टू 263 केल्विन. T3 इज इक्वल टू 30 प्लस 273 दैट इज 303 केल्विन. X2 इज 0.95. COP हमारा पता नहीं, हमको कैलकुलेट करना है. हमने TS डायग्राम ड्रा किया, TS डायग्राम, pH डायग्राम ड्रा किया. सो pH डायग्राम 1 to 2, राइट, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. सो इससे में भी हमने TS डायग्राम को ड्रा किया है. नेक्स्ट क्या किया हमने, एंट्रोपी, पहले का हमारा एंट्रोपी कितना है वो फाइंड आउट किया है हमने यहाँ पे. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितना है हमने फाइंड आउट किया है. तो नेक्स्ट हमारा वी नो दैट एंट्रोपी एट पॉइंट टू आल्सो आई फाइंड आउट लाइक दिस S2 SF2 प्लस X2 इंटू HFG2 प्लस T2, ये हमने फाइंड आउट किया. देन द आंसर आया 4.7. नाउ इक्वेटिंग द 1 and 2, क्यों इक्वेटिंग कर रहे हैं. सो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन व्हाट हैपेंड, सो इट विल बी एन S1 is equal to S2. So based on that I will find out the x1 value. x1 value हमने find out किया. x1 value is unknown value, x2 value they given that is 0.95. Now I find out the x1 value, it came 0.86. Now I put the values into the equations, HF1 plus x1 into HFG1. I find out the value 12.59.37. H2 वैल्यू HF2 X2 HFG2 उसमें भी हमने
1411.59 ये दोनों है। HF3 हमारे करस्पॉन्डिंग का हमारा 25 डिग्रीज का हमारा कितना है, 30 डिग्रीज का हमारा HF वैल्यू हमने डायरेक्ट ले लेते हैं, दैट इज 323. नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज. COP is equal to H1 minus HF3, H2 minus H1. I put the values here. That is around comes 5.79. Students, ये numerical हमारा wet compression का at the end of the compression is wet, right? So students, ये numerical दोनों समझ में आया होगा. So is there any doubts you have? So you put in the comments. I will make some another videos for detailed description. Okay, thank you students.